Good morning, students. In our last video, we had discussed about strength and endurance. Now, today we'll start the third one, that is speed. So first we will discuss about speed. Children, it is the rate at which someone moves, or we can say how quickly a person changes the direction, that is called speed. And we also know that speed is component of physical fitness which requires in many games like boxing, sprint, table tennis and many other games, right? As you can see, I have mentioned a definition about speed. According to Barrow and McGee, the capacity of an individual to perform successive movement of the same pattern at a fast rate, that is called speed according to him. So children, in simple word I can say speed is the ability to move one place to another place in the shorter possible time. Okay. And now we will discuss about types of speed. As you can see in this slide, there are mainly 5 types of speed, that is reaction ability, acceleration ability, movement speed, locomotor ability, and the last one is speed endurance. So children, we will discuss all the types one by one. Okay. So first we will discuss about reaction ability. Children, this ability depends completely upon coordinative process, or we can say the ability to react effectively and quickly to any action or signal, that is called reaction ability. And it is also classified into 2 parts, as you can see here. First one is simple reaction ability and the second one is complex reaction ability. Children, in simple reaction ability, player know that which signal he is going to get and how he has to react. Okay. But in complex reaction ability, the signals are unexpected for a sports person because he does not know when and which signal he is going to get, right? For example, facing a ball in cricket by a batsman, that is the complex reaction ability, right? Second type is acceleration ability. Children, this is the ability to achieve maximum speed from stationary position. So I think you all have seen a sprinter runs very fast, but he achieves his maximum speed after approx 6 seconds. The third one is movement speed. As from the name we can understand speed of any movement, or we can say how speedily we can perform any movement in minimum time, that is called movement speed. Next one is locomotor ability. Children, it is the ability to maintain maximum speed for maximum time, or I can say maximum distance. Okay. Now the last one is speed endurance. It is the combination of speed and endurance, or we can say it is the ability to perform movements with high speed under condition of fatigue. And now we will discuss methods to develop speed. Children, our speed depend mainly on 2 factors, that is genetic factor and another one is environment. So as we have already discussed about fast twitch fiber and slow twitch fiber in 11th class. So as we know, if a person have more amount in slow twitch fiber, he will have more stamina. But if a person has more amount of fast twitch fiber, his movements will be faster as compared to the another one, right? But children, we cannot change the amount of fibers in our body because it is related to the genetic factor. But we can change the environmental factor with the help of some methods, or I can say we can develop our speed, okay, through some methods. So first we will discuss about acceleration run. Children, it is a special form of sprint training in which the running speed is gradually increased from jogging to striding and finally to sprinting at maximum pace. For example, he takes start from the starting line and tries to attain the maximum speed as soon as possible and finish the distance. And children, in this type of runs, it is repeated again and again with the sufficient interval in between runs, okay? And the second one is pace run. Children, it means running the whole distance of a race at a constant speed, or I can say in same speed an athlete has to finish the whole race, okay? For example, 800-meter races, or I can say more than 800-meter races are included in pace runs. We can take an example like if a runner of a 800-meter race and his best time is 1 minute 40 seconds.
So he should run the first 400 meter in 49 seconds and the second 400 meter in 51 seconds. And this procedure is called pace run. Okay. And children, middle and long distance races must be run with like keeping the pace in mind. Or we can say in the beginning of such races, the first part of the race should not be run too fast, or otherwise you cannot complete the race, right? And we should distribute our energy according to the distance of a race. Next we talk about the flexibility. Flexibility क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या मेथड्स हैं. ओके, एज वी ऑल नो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके जो मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं ना. आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है और जो जॉइंट्स का मूवमेंट है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. एक्चुअली जो बैक प्रॉब्लम्स और लेग मसल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये इससे हम बच सकते हैं, है ना. आपने जनरली देखा होगा कि एक एज होने के बाद ये जो बैक की प्रॉब्लम होती है, या हमारी जो पैरों की प्रॉब्लम होती है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है ना, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू. वन इज़ पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अनदर वन इज़ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट्स to greater distance with external help is called passive flexibility, है ना. बहुत इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है और आपको जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी इसकी कम होती है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, और इट इज़ ऑलवेज मोर देन द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में देखा कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आप किसी की हेल्प ले रहे हो, है ना. और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं. ठीक है. इट रिमेन्स इन अ स्टैटिक पोजीशन, जैसे वाइल डाइविंग, सिटिंग, लाइंग, है ना. इन कंडीशंस में जब स्पोर्ट्समैन होते हैं तब जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, it is needed for carrying out of movements to a greater distance when an individual is in motion. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज़ में. ओके. Yes students, now you have seen what is flexibility and the types of flexibility. Now we'll see the methods to improve flexibility. Okay. There are 4 methods to improve flexibility. One is ballistic stretching, second one is static stretching, third one passive stretching, and the fourth one is PNF. Now we'll see it in detail. See the first one, that is ballistic stretching, है ना. इसमें क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है ये स्विंग्स पर और एक रिदमिक वे में होता है ना. जैसे इसमें जो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है दैट इज़ इन द रिदमिक वे, है ना. एट ईच काउंट द जॉइंट इज स्ट्रेच्ड टू द मैक्सिमम लिमिट एंड देन इट इज़ अगेन फ्लेक्स्ड. मीन्स जब फर्स्ट काउंट आप करते हो तो उसको जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करेंगे और फिर उसको हम रिलैक्स पोजीशन पर लेके आते हैं. ओके. It is also a dynamic method, and this method uses the momentum generated from repeated bouncing movements to stretch the muscles. और it is very effective, पर जो experts होते हैं वो कभी भी recommend नहीं करते हैं इस method को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो over stretch है उससे आपके muscles जो होते हैं उसमें स्टिफनेस आ जाती है, इंजरी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है. नेक्स्ट वन, दिस इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड. ये जो मेथड होता है ये एक्सट्रीमली पॉपुलर और एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है. ओके. इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है या जो स्ट्रेचिंग पोजीशन होती है उसको हम एक लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं जब तक कि आपकी बॉडी पर या आपके मसल्स के ऊपर कोई टेंशन या टाइटनेस फील ना होने लगे. तो उसको हम स्ट्रेच करते हैं
और उसके बाद में फिर हम उस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड कर कर रखते हैं, मिनिमम फॉर 10 सेकेंड्स, है ना. एंड इट इज़ टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स, है ना. हमने क्या किया, बॉडी को स्ट्रेच किया कम से कम 10 सेकेंड्स तक. उसके बाद फिर जिस पोजीशन में हम हैं उसको कम से कम 30 सेकेंड्स तक उसको हमने होल्ड करके रखा एंड देन विल कम टू रिलैक्स पोजीशन. ओके, सो इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स. ओके, द थर्ड वन इज पैसिव स्ट्रेचिंग. दिस इज ऑल्सो नोन एज dynamic stretching method. In this type of stretching we need the help of like towel or some balance or your friend, है ना, किसी की भी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं. द फोर्थ वन इज PNF, है ना, प्रोप्रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक. In this technique, what happened? The sports person performed this technique for gaining flexibility, and it involves the muscle contraction before the stretch in an attempt to achieve maximum muscle relaxation. Okay, इसका एक कुछ procedure होता है ना, that you read it in the book, and with the help of that procedure will perform this activity, this exercise. Okay. The next is, अभी हमने देखा कि क्या मेथड्स होते हैं बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बट एज वी नो दैट ये मसल्स की एक्सरसाइज है तो उसके लिए हमको कुछ सेफ्टी भी रखना होती है. सो देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग और इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी. फर्स्ट वन इज, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली परफॉर्म करना ज़रूरी है ना. ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर 2 दिन नहीं की एक्सरसाइज, फिर 2 दिन कर रहे हैं हम, 1 दिन नहीं कर रहे. यू शुड मेंटेन द रेगुलरिटी. सेकेंडली, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना. किसी भी सेकेंडली प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज और फिर उसके कंप्लीशन पर कूल डाउन एक्सरसाइज. फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय हमको ये ध्यान में रखना होता है कि जब हम एक पॉइंट पर आके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमको कब रुकना है, जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल फील करे, है ना. मीन्स आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो लेकिन हमारी बॉडी को कंफर्टेबल फील करना चाहिए. अगर उसके ऊपर कोई स्ट्रेन आ रहा है तो इमीडिएटली हमको रुक जाना चाहिए, अदरवाइज मसल्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. स्ट्रेचिंग पोजीशन शुड बी हेल्ड फॉर 10 to 20 सेकेंड्स विदाउट फीलिंग अनकम्फर्टेबल, है ना. अगर आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो आप टाइम लिमिट कम भी कर सकते हो. जितने सेकेंड्स आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है हमको सिर्फ उतने ही टाइम तक बॉडी को स्ट्रेच करना होता है. ब्रीदिंग शुड बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग एंड इट शुड बी काम एंड रिदमिक. हमेशा जो ब्रीदिंग होती है वो काम और रिदमिक होना चाहिए. जर्क मूवमेंट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए. जर्क से क्या होता है, मसल्स पर इफेक्ट आता है. किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को करने के बाद हमारी मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं. ओके, यस स्टूडेंट्स, अभी हमने स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. अब ये क्या होती हैं? They are those abilities of an individual which enable the individual to do various related activities properly as well as efficiently. Our accuracy, rhythm, flow and constancy depend on our coordinative abilities. हमारे 1980 में स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी, जो ये जो 4 चीज़ें थी उनको मेन फिजिकल फिटनेस के लिए मेन कंपोनेंट कंसिडर किया गया था, है ना. लेकिन आफ्टर द टर्म एजिलिटी इट चेंज्ड इनटू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. मतलब 1980 में जब फिजिकल फिटनेस की बात हुई तब 4 चीज़ों को कंसिडर किया गया था कि दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द फिजिकल फिटनेस.
दे वर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी। और बाद में एजिलिटी जो है उस टर्म को चेंज किया गया और उसको क्या बोला गया, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बात करें। द टर्म एजिलिटी वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज इट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड देयर वॉज नो अनएनिमिटी इन दिस word. And now see what is the meaning of coordinative ability. It is a coordination of neuromuscular, ठीक है, इसमें नर्व्स और मसल्स का ग्रुप जो होता है उन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। एंड दिस एबिलिटी मीन्स टू डू और परफॉर्म अ वर्क इफेक्टिवली, एफिशिएंटली विथ परफेक्शन। इस कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो होती है उसमें ये होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको उस एक्टिविटी को एफिशिएंटली और पूरे परफेक्शन के साथ कंप्लीट करो, ठीक है। इसमें जो मसल्स और ब्रेन होते हैं वो टुगेदर वर्क करते हैं, है ना, विदाउट एनी अनवांटेड मूवमेंट। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Mainly coordinative abilities depends on central nervous system. In this ability the combination of body movements of several limbs, है ना, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट लिम्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है बहुत ही इफेक्टिवली, ओके, एंड स्मूथली, है ना। और ये एक ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल मूवमेंट होता है बॉडी का जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज से। These abilities are very important, have very important role in sports and games. जितने भी स्पोर्ट्स या गेम्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट की या गेम की, तो उसमें आइज़ का, हैंड्स का, फीट का, है ना, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, ओके। अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो होती हैं ये एबिलिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, ओके। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। नाउ सी व्हाट दे आर। फर्स्ट वन इज़ रिएक्शन एबिलिटी, है ना। इसमें जो फर्स्ट है वो है रिएक्शन एबिलिटी। इसमें क्या होता है, it reacts immediately or quickly, है ना, and effectively to a signal। ये बहुत ही क्विक और जो फास्ट एबिलिटी होती है ना वो होती है। ये भी दो तरह की होती है। इसमें होता है एक सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, ओके। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है कि जो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी होती है उसमें क्विक एक्शन लेना होता है आपको, और आपको सब पता होता है। जो क्विक एक्शन आप लेने वाले होते हो ना वो आपको के लिए नोन रहता है और एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होता है इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, है ना, और अननोन। मीन्स इसमें आपको एक्शन तो क्विकली लेना है क्योंकि रिएक्शन एबिलिटी का मतलब ही यही है कि क्विक एक्शन लेना। पर सिंपल में हमको क्या होता है कि वो एक्शन नोन रहता है और हम एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में अननोन होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ रनिंग, तो रनिंग में क्या है, स्प्रिंटर को मालूम है कि अब मुझे जैसे ही स्टार्ट बोला जाएगा मुझे रन करना है, ठीक है, तो मेंटली ही इज़ प्रिपेयर्ड। लेकिन अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में आप वेट कर रहे हो कि बॉल हमको हमारे पास कैच आ भी सकता है, नहीं आ सकता है ना, तो ये जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ओके। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। Now the second one is rhythm ability, and in this ability to observe or perceive the rhythm of the movement and do the movement with the required rhythm। अब जैसे जिम्नास्टिक और फिगर स्केचिंग है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए जो एक्सटर्नल रिदम होता है गिवन टू इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड टू एक्सप्रेस इन द मूवमेंट्स, तो ये जो रिदम एबिलिटी होती है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्विमिंग, ठीक है। जैसे वेरियस स्पोर्ट्स होते हैं, आउटसाइड स्पोर्ट्स जो होते हैं, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो रिदम के साथ इनके मोटर मेमोरी होती है, या इनको ऐसा जिम्नास्टिक है ना, स्विमिंग है, डाइविंग है, इसमें रिदम के साथ ये वर्क करते हैं, ओके। तो आपने जैसे ये देखे होंगे जुम्बा है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये सारी रिदम के साथ परफॉर्म होती हैं, तो दे आर नोन एज रिदम एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि जिन एक्टिविटीज़ में बॉडी को बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है या बॉडी बैलेंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस एबिलिटी,
इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी की जो पोजीशन होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, है ना। जैसे स्केटिंग है, स्केटिंग इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस एबिलिटी। ओके, इस टाइप की जो एबिलिटी होती है ये गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन इज कपलिंग एबिलिटी। अब कपलिंग एबिलिटी का क्या मतलब होता है? इन दिस काइंड ऑफ एबिलिटी द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। इसमें क्या होता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का मूवमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हम जो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कपलिंग ability. This is very significant and in all sports, but especially in team games or gymnastic and we can say boxing और wrestling, है ना। जैसे कि अगर अपन बॉक्सिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपके हाथों का, सिर का, ट्रंक का, है ना, फीट का, इन सब का कॉम्बिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। Next one is orientation ability, and this ability is to determine and change the position of body, movement in time and space in relation to defined field of action. It is the ability to determine the position of the body and its parts in time and space in relation to gravity, moving objects like ball, opponent, partner, playing field, etc. है ना। ये जो एबिलिटी होती है ये डिपेंड करती है फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आईज और सेंस ऑर्गन्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एबिलिटी. It is the ability to achieve a high degree of accuracy and economic of separate body movement and movement phase in a motor action. इसमें क्या होता है, इस एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारी द हाई लेवल ऑफ एबिलिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस्ड मूवमेंट एंड द डिग्री ऑफ मास्टरी ओवर मोटर एक्शन. ओके, now the seventh one is adaptation ability, adjustment according to arise situation. जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह से हमको एडजस्ट करना होता है ना। इस एबिलिटी में अकॉर्डिंग टू दिस एबिलिटी, जैसे सपोज अगर हम बास्केटबॉल प्ले कर रहे हैं तो उस समय हमारी जो पोजीशन है या बॉल की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी बॉडी को मूव करना होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड द एडेप्टेशन एबिलिटी. ओके, the change in situation can be expected one or can be sudden or unexpected one. ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि it is the ability to solve motor task or effectively in spite of change or changed situation. Thank you, children. I hope this topic is clear to everyone, and still if you have any doubt you can ask. Thank you. Have a nice day.